بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میں قبرستان کی جھاڑیوں میں چھپی اس کی دید کی منتظر تھی۔ چاروں طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ آدھی رات کے اس پہر کتوں کے بھونکنے کی آوازیں چاروں طرف سے آ رہی تھیں۔ تبھی تیز ہوا چلنے لگی۔ تھوڑی سی مٹی میری آنکھوں میں بھی اڑ کر آ گئی تھی۔ جیسے ہی میری آنکھوں کے سامنے سے گرد و غبار ہٹا تو ایک بڑے سے پرانے پیڑ کے نیچے سے وہ ظاہر ہوا۔ اونچے لمبے قد کی وجہ سے وہ کسی دیوتا کی مانند دکھائی دے رہا تھا۔ پھر وہ ایک بڑی قبر کے پاس پہنچا۔ وہاں وہ دو زانو ہو کر بیٹھ گیا۔ اب آنکھیں بند کر کے وہ کوئی عمل کر رہا تھا، لیکن میری آنکھیں اس کے خوبصورت چہرے سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میں اس کی شخصیت کی کھوج میں تھی۔ میں صرف ایک بار چاہتی تھی کہ وہ بھی میری طرف دیکھے، اور جس طرح میں اس کی عاشق ہوں وہ بھی ایسے ہی میرا عاشق ہو جائے۔ اس دل کی ہی خاطر تو میں آدھی رات کو اس خوفناک قبرستان میں موجود تھی، وہ بھی صرف اسے دیکھنے کے لیے۔ میں وہاں جھاڑیوں میں چھپی بیٹھی ہی تھی کہ اچانک کسی جانور نے مجھے کاٹ لیا۔ تکلیف کی شدت سے میرے منہ سے چیخ نکلی تھی۔ میری چیخ سن کر عمل کرتے ہوئے اس نے اچانک آنکھیں کھولیں۔ میں گھبرا کر جھاڑیوں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسی اثنا میں اس کی نظر مجھ پر پڑی۔ میں گھبرا کر وہاں سے بھاگنے لگی ہی تھی کہ میرا نام وردہ ہے، میں ایک کالج کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ میں اپنے کالج کی سب سے ذہین اسٹوڈنٹس میں سے ایک تھی۔ کالج کے سارے ہی اساتذہ دوسری لڑکیوں کے سامنے میری تعریفوں کے پل باندھتے رہتے تھے، جسے سن کر میں کافی حد تک مغرور ہو چکی تھی۔ کالج میں ایسی لڑکی ایک بھی نہ تھی جو میری ذہانت کا مقابلہ کر سکتی۔ ویسے بھی مجھے میری یہ ذہانت ورثے میں ملی تھی۔ میرے ابو ایک بہت بڑے سرجن تھے اور ایک بہت بڑے ہاسپٹل میں ان کی سرکاری نوکری تھی۔ میری امی بھی ڈاکٹر تھیں اور وہ مجھے بھی ڈاکٹر بنانا چاہتی تھیں، لیکن میری شروع سے ہی خواہش تھی کہ میں ایک سائنسدان بنوں، کیونکہ نئی نئی چیزوں پر تجربے کر کے مجھے بہت خوشی حاصل ہوتی تھی۔ مجھ سے چھوٹی ایک بہن جبکہ دو بڑے بھائی تھے۔ ایک بھائی ڈاکٹر تھا اور دوسرا بھائی لندن کی ایک بڑی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ میں بھی ایک نامی گرامی کالج میں پڑھتی تھی۔ مجھ سے چھوٹی سدرا ابھی اسکول میں پڑھ رہی تھی۔ ہمارے کالج میں لڑکیوں کے درمیان یہ مقابلہ چلتا رہتا تھا کہ کوئی لڑکی کسی سے آگے نہ بڑھ جائے۔ میں جس کالج میں پڑھتی تھی وہاں پر میرے ابو ڈونیشنز کے نام پر اچھی خاصی رقم دیتے تھے، جس کی وجہ سے کالج میں لڑکیوں اور اساتذہ کے سامنے میری بہت عزت تھی۔ اگر کوئی بھی کالج میں مقابلہ ہوتا تو میں اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی، پھر چاہے وہ کوئی تقریری مقابلہ ہوتا یا کوئی کالج کا بہت بڑا پروجیکٹ۔ ہر مقابلے میں میری جیت یقینی تھی۔ آج تک کوئی ایسی لڑکی نہ تھی جس نے مجھے ہرایا تھا، بلکہ میں خود کو ہارنے ہی نہ دیتی تھی، کیونکہ اگر میں کسی چیز کو کرنے کی ٹھان لیتی تو جب تک اسے پورا نہ کرتی مجھے سکون ہی نہ ملتا تھا۔ سب لڑکیوں کے منہ پر میری ہی واہ واہ ہوتی تھی۔ ایک دن کالج میں ایک ایسی لڑکی نے داخلہ لیا جو ذہانت میں مجھ سے بھی 4 قدم آگے تھی۔ اس کا نام انوشا تھا۔ وہ اسکالرشپ پر پڑھنے کے لیے ہمارے کالج میں آئی تھی۔ اتفاق سے اس نے میری ہی کلاس میں داخلہ لے لیا۔ اسے آئے ہوئے صرف 1 ہفتہ ہی ہوا تھا، لیکن اس 1 ہفتے میں ہی اس نے اپنی جگہ اس کالج میں بنا لی تھی۔ مجھے اس سے بے پناہ حسد محسوس ہوتا اور میں سوچتی کہ کہیں میری کلاس کی سب لڑکیاں اس کی گرویدہ نہ ہو جائیں اور مجھے چھوڑ کر اس کی تعریفوں میں نہ لگ جائیں۔ وہ ساری کلاس کی لڑکیوں سے بہت اچھے اخلاق سے بات کیا کرتی تھی، لیکن جب بھی مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتی تو میں اسے دیکھ کر اتنا برا منہ بناتی کہ اس کی ہمت ہی نہ ہوتی کہ وہ مجھ سے کوئی بات کرے۔ میں دل ہی دل میں سوچتی کہ شاید یہ میری جگہ مجھ سے چھیننے آئی ہے۔ پھر کچھ دنوں بعد ہی کالج میں ایک نوٹس لگا جس میں لکھا تھا کہ کالج میں ایک بہت بڑا مقابلہ ہونے جا رہا ہے، جس میں مختلف قسم کے پروجیکٹس بنانے ہوں گے۔ جس لڑکی کا پروجیکٹ سب سے اچھا ہوگا وہ یہ مقابلہ جیت جائے گی، اور پورے 1 سال تک اس کی ایک بڑی سی تصویر کالج میں آویزاں ہوگی۔ سب لڑکیاں اس مقابلے کے لیے بہت ایکسائٹڈ ہو رہی تھیں، اور میں تو ابھی سے ہی سوچ رہی تھی کہ یہ مقابلہ مجھے ہی جیتنا ہے۔ اس پروجیکٹ میں اور لڑکیوں کے ساتھ انوشا بھی حصہ لے رہی تھی، اور میرے بغیر تو یہ مقابلہ ادھورا تھا، کیونکہ ایسے ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ کالج میں کوئی مقابلہ ہو اور میں اس میں شرکت نہ کروں۔ اب سبھی لڑکیاں جو جو پروجیکٹ بنا رہی تھیں وہ سب خفیہ رکھ رہی تھیں۔ میں بھی اپنا پروجیکٹ راز رکھنا چاہتی تھی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ جو چیز میں بناؤں وہ کوئی اور لڑکی بنا سکے۔
हाँ, लेकिन मैंने अपनी एक चालाक दोस्त सबा को कह दिया था कि तुम अनुषा पर हर तरह से नजर रखना, ताकि मुझे पता चल जाए कि आखिर वो ऐसी क्या चीज बना रही है। मैं एक चश्मा बना रही थी, ऐसा चश्मा जिसमें से वो चीज नजर आए जो आम तौर पर किसी इंसान को दिखाई नहीं देती। यही सोचकर मैंने अपने प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया था। जो आम तौर पर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं वो हम आम नजरों से नहीं देख सकते, लेकिन मैं जो चश्मा बनाने वाली थी वो एक ऐसा चश्मा होता जिससे ना सिर्फ हम उन छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को, बल्कि आंखों से ओझल ऐसी अशिया जो आम तौर पर किसी इंसान को दिखाई नहीं देती, उन्हें भी देख सकें। मैं अपनी कॉलेज के लिए साइंसी लेबोरेटरी से वो शीशा चुराना चाहती थी जो उस चश्मे में लग सके, क्योंकि वहां पर बहुत सी ऐसी चीजें थीं जो मेरे काम आ सकती थी। फिर मैंने अपनी दोस्त सबा की मदद से आखिरकार वो शीशा लेबोरेटरी से चुरा लिया और अपने प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया। कुछ दिनों बाद ही मैंने अपना जादुई चश्मा तैयार कर लिया था, जिसका नाम मैंने मैजिकल ग्लासेस रखा था। जैसे ही मैंने वो चश्मा अपनी आंखों पर लगाया तो मुझे हैरत हुई, क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट कामयाब हो गया था। उस चश्मे से मुझे नन्हे नन्हे खूर्दबीन कीड़े तक नजर आ रहे थे, जो अक्सर सब्जियों और फलों में मौजूद होते हैं। हत्ता के पानी में दिखने वाले कीड़े जो आम तौर पर नजर नहीं आते, लेकिन उस चश्मे से मुझे वो भी दिखाई दे रहे थे। मैं उस चश्मे को लगा कर बहुत खुश थी। फिर मैंने एक बड़ा सा बॉक्स लिया और उसमें उस चश्मे को महफूज कर दिया। वो प्रोजेक्ट कल था जिसका मुझे शिद्दत से इंतजार था। फिर दूसरे दिन मैं अच्छे से तैयार हुई और अपना प्रोजेक्ट लेकर कॉलेज चली गई। वहां पर एक बहुत बड़े मोअज़्ज़िज़ीन मेहमान खसूसी के तौर पर आए हुए थे। फिर सब लड़कियां अपने अपने प्रोजेक्ट दिखा रही थीं। मैंने भी अपना जादुई चश्मा कॉलेज के उन प्रोफेसर्स और उन मेहमान खसूसी के सामने पेश कर दिया। वो उस चश्मे को देखकर काफी मुतासिर नजर आ रहे थे। और फिर 3 घंटों के बाद ही रिजल्ट का ऐलान कर दिया गया। मेरा नाम सरे फहरिस्त था। हमेशा की तरह मैंने इस प्रोजेक्ट में पहली पोजीशन हासिल की थी, लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि मैंने इस प्रोजेक्ट को चोरी करके तैयार किया था। ये बात सबसे छुपी रहती, क्योंकि किसी लड़की की हिम्मत नहीं थी कि वो मेरी शिकायत कॉलेज के किसी प्रोफेसर या टीचर के सामने लगा सके। मेरे असर व रसूख से सभी वाकिफ थे। कॉलेज के प्रोफेसर उस चश्मे को कॉलेज के म्यूजियम में रखना चाहते थे, लेकिन मैं किसी कीमत पर इतनी मेहनत से तैयार किए गए चश्मे को उनके हवाले ना करना चाहती थी। लेकिन मैंने दिल पर पत्थर रखकर उस वक्त तो वो चश्मा उनके हवाले कर दिया, लेकिन बाद में उसे कैसे हासिल करना है ये मैंने सोच लिया था। और फिर आखिरकार मैंने उसे म्यूजियम से बआसानी हासिल कर लिया। अब उस चश्मे को कीमती खजाने की तरह मैंने छुपा कर रख लिया। मैं उसे ऐसी जगहों पर इस्तेमाल करना चाहती थी जहां पर मुझे उसकी ज़रूरत पड़ सकती थी। मैंने उसके बारे में किसी को कुछ ना बताया, क्योंकि अगर मैं किसी को बता देती तो ये खबर बआसानी कॉलेज के प्रोफेसर्स तक पहुंच सकती थी। इसीलिए इस बात को मैं अपने सीने में दफन करके रखना चाहती थी। एक बार कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी जिंदगी बदल कर रख दी। एक दिन जब कॉलेज की छुट्टी थी, मैं सोफे पर लेटकर टीवी देख रही थी। मेरी अम्मी मेरे पास बैठी थी। जब हमारे घर में काम करने वाली सुहरा अम्मी के पास आई, अम्मी को कहने लगी कि बेगम साहिबा, आज मुझे जल्दी छुट्टी चाहिए क्योंकि मेरी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब है। उसे न जाने कितने दिन से दौरे पड़ रहे हैं। मैंने उसे पीर साईं के पास दिखाया था। उसका कहना है कि तुम्हारी बेटी को जिन जात चिमट गए हैं। मेरी अम्मी उस मासी की बात सुनकर उसे कहने लगी कि क्या बेवकूफ़ों वाली बात कर रही हो सुहरा, भला आज के ज़माने में ये सब बातें कहाँ मानी जाती हैं। तुम अपनी बेटी को किसी डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाती हो। फिर मासी सुगरा कहने लगी, नहीं नहीं बेगम साहिबा, वो पीर बहुत पहुंचा हुआ है। उसने तो इतनी औरतों के जिन निकाले हैं। उसने कहा है कि मेरी बेटी का इलाज भी वो कर देगा। और फिर बेगम साहिबा, मेरी बेटी ने भी तो एक गलत हरकत की थी जिसकी वजह से उसके साथ ऐसा हुआ है। मैं मासी सुगरा की बातें बड़े गौर से सुन रही थी। मुझे ना जाने क्यों बहुत दिलचस्पी सी महसूस हो रही थी इन सब बातों में। फिर मैं चौंक कर उठी और मासी सुगरा को कहने लगी, अच्छा मासी, क्या हरकत की थी तुम्हारी बेटी ने जो उसके साथ ऐसा हुआ है। फिर वो बताने लगी कि छोटी बीबी, मेरी बेटी रात के वक्त अपनी सहेली के घर गई थी। न जाने उसकी सहेली किस लड़के के प्यार में पागल होकर उस लड़के के ऊपर कोई तावीज़ गंढे करवा रही थी। उस लड़की को एक पीर ने कहा था कि उसे किसी मुर्दे की हड्डियां चाहिए जिस पर अमल करके वो उस लड़के को हासिल कर सकती है।
میری بیٹی بھی جھلی تھی جو رات کے وقت اپنی سہیلی کے ساتھ قبرستان چلی گئی اور وہیں پر جن زاد اس سے چمٹ گئے۔ جب سے مسلسل اس پر دورے پڑتے ہیں اور ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو جاتے ہیں۔ مجھے یہ ساری باتیں سن کر حیرت ہو رہی تھی کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کسی لڑکی کے ساتھ۔ پھر امی کے جانے کے بعد میں نے رازداری سے ماسی سغرا سے کہا کہ ٹھیک ہے، کل میں آپ کے ساتھ آپ کی بیٹی کو دیکھنے جاؤں گی۔ میرے پاس ایک ایسی چیز ہے جس سے مجھے یہ پتہ چل جائے گا کہ واقعی میں آپ کی بیٹی کے ساتھ جن ذات کا مسئلہ ہے یا کچھ اور ہے۔ ماسی سغرا میری بات سن کر خوش ہو گئی اور مجھے دعائیں دینے لگی۔ اب میں بہت زیادہ پرجوش ہو رہی تھی اور یہ بات تو میں نے سوچی ہی نہ تھی کہ جو چشمہ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا اور اسے لگا کر مجھے وہ سب چیزیں دکھائی دیتی تھیں جو کوئی عام انسان نہیں دیکھ سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ جہاں پر جن زاد یا بھوت پریت وغیرہ رہتے ہیں وہاں پر مجھے اس چشمے کو لگا کر دیکھنا چاہیے۔ دوسرے دن میں کالج سے چھٹی لے کر ماسی سغرا کے ساتھ اس کے گھر جا رہی تھی۔ پھر میں نے جب اس کی بیٹی کو دیکھا جس کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھیں اور بال بکھرے ہوئے تھے، ماسی سغرا نے اس کے دونوں ہاتھوں کو باندھا ہوا تھا۔ جب میں نے اس کے ہاتھوں کے باندھنے کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگی، کیا کروں چھوٹی بیوی، یہ تو گھر میں توڑ پھوڑ کر رہی ہے، کبھی برتنوں کو توڑ دیتی ہے تو کبھی چھری سے اپنے ہاتھ کاٹنے کی کوشش کرتی ہے۔ پھر میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے پاس چھپایا ہوا وہ چشمہ نکالا اور آنکھوں پر لگا لیا۔ پھر جیسے میں اچھل پڑی کیونکہ ماسی سغرا کی بیٹی زینب کے پاس اس کے پاس کھڑی مجھے ایک خوفناک چڑیل نظر آئی۔ وہ بڑے بڑے دانتوں اور خوفناک شکل والی چڑیل تھی۔ وہ اس پر اس طرح نظر جما کر کھڑی تھی جیسے اسے اپنے بڑے بڑے دانتوں سے نگل لے گی۔ میرا وجود اس منظر کو دیکھ کر کانپنے لگا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ حقیقت میں اس لڑکی کے ساتھ یہ ہوگا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ پیر صحیح کہہ رہا تھا، اس لڑکی کے ساتھ جن ذات نہیں بلکہ ایک خوفناک چڑیل تھی۔ پھر میں نے اس چشمے کو اتارا تو وہ چڑیل میری نظروں کے سامنے سے غائب تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ میرا یہ چشمہ نہ صرف چھوٹے کیڑے مکوڑوں کو بلکہ انسانی نظروں سے پوشیدہ جن زادوں کو بھی دیکھ سکتا تھا۔ اس بھیانک چڑیل کو دیکھ کر میں بری طرح خوفزدہ ہو گئی تھی۔ پھر میں ماسی سغرا سے کہنے لگی کہ آپ اس کا اچھے سے علاج کروائیں کیونکہ جو پیر اس کا علاج کر رہا ہے وہ بالکل ٹھیک کر رہا ہے، اس لڑکی پر کسی برے آصف کا سایہ ہے۔ یہ کہہ کر جلدی سے میں اس کے گھر سے نکل آئی۔ اب میرے ذہن میں بہت سی سوچیں گردش کر رہی تھیں۔ میں اس قبرستان میں بھی جانا چاہتی تھی جہاں پر جن بھوتوں کا بسیرا تھا۔ میں وہاں جا کر یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر وہاں پر وہ جن ذات کس طریقے سے رہتے ہیں۔ ان میں بھوت بھی ہو سکتے تھے، جن زاد اور چڑیلیں بھی۔ اب میں ہر چیز بھول چکی تھی اور میرا دماغ پڑھائی سے بھی اچاٹ ہو گیا تھا۔ آخر کس طرح وہ چڑیل اس لڑکی کے پیچھے لگ گئی، مجھے اس بات کی کھوج تھی۔ پھر میں نے اپنا موبائل نکالا اور جنوں اور بھوتوں کے بارے میں سرچ کرنے لگی۔ کافی زیادہ معلومات حاصل کرنے کے بعد مجھے پتہ چل گیا تھا کہ خوفناک آصف کا بسیرا ایسی جگہوں پر ہوتا ہے جہاں پر زیادہ تر انسان نہیں بستے۔ وہ اپنا ٹھکانہ مختلف قسم کے درختوں پر اور اکثر قبرستان میں بناتے ہیں تاکہ انسانوں کی نظروں سے چھپ کر وہ وہاں پر آزادی سے رہ سکیں۔ ان جن زادوں میں کوئی نیک ہوتا ہے تو کوئی بہت شیطانی جن زاد جو عام طور پر لوگوں کو بہت تنگ کرتے ہیں۔ کافی زیادہ معلومات لینے کے بعد میں یوں پرجوش ہو رہی تھی۔ ویسے بھی مجھے نئی نئی چیزیں کرنے کا شوق اٹھتا رہتا تھا۔ یوں دھیرے دھیرے جیسے جیسے ٹائم گزرتا رہا ویسے ویسے میرا دل مچلنے لگ جاتا کہ کیوں نہ میں اپنے اس جادوئی چشمے کا استعمال کر کے جن زادوں کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کر سکوں۔ یہی سوچ کر ایک دن میں اٹھی اور میرے قدم خود بخود اس قبرستان کی طرف اٹھنے لگے جہاں پر ماسی سغرا کی بیٹی زینب کے پیچھے وہ خوفناک چڑیل لگ گئی تھی۔ میں کسی جن ذات کو بھی تنگ نہیں کرنا چاہتی تھی، ہاں لیکن اتنا ضرور جاننا چاہتی تھی کہ وہاں پر کسی نہ کسی جن ذات کو میں دیکھ سکوں۔ گھر میں مکمل طور پر سناٹا تھا۔ مجھے گھر کے خفیہ دروازے سے نکلنا تھا تاکہ کسی کو میرے بارے میں کوئی خبر نہ ہو سکے کہ میں رات کے اس پہر کہاں جا رہی ہوں۔ بڑی سی کالی چادر میں نے اپنے اوپر ڈھانپ لی تھی تاکہ میرا چہرہ کسی کو نظر نہ آئے۔ اب میرے قدم تیز تیز اس قبرستان کی طرف اٹھ رہے تھے۔ میں نے چشمے کو مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ قبرستان میں ہر طرف جھاڑیاں ہی جھاڑیاں تھیں۔ کچھ قبریں ایسی تھیں جن کے منہ کھلے ہوئے تھے
तो कुछ ताज़ा कब्रें भी मौजूद थी। उस कब्रिस्तान में बेतहाशा दरख्त थे जो काफ़ी पुराने लग रहे थे। इंतहाई खौफनाक मंजर था, लेकिन अपने दिल के हाथों मजबूर होकर मैं आखिरकार जिनजादों के बारे में जानने के लिए उस कब्रिस्तान में आ गई थी। अब मैं एक दरख्त के पीछे छुप गई और धड़कते दिल के साथ उस चश्मे को आंखों पर लगा लिया। फिर मेरे मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई, क्योंकि सामने जो मंजर मुझे नजर आ रहा था वो इंतहाई खौफनाक था। कोई काला सा हैबतनाक वजूद कब्र के पास बैठा था, तो कोई दरख्त पर लटका हुआ था। एक भयानक खौफनाक शक्ल वाली चुड़ैल एक मरी हुई बिल्ली को खाने में मसरूफ थी। गर्ज के वहां पर खौफनाक जिन जात चलते फिरते और उछलते कूदते मुझे साफ दिखाई दे रहे थे। तभी मेरी नजर उन सब से अलग एक ऐसे जिन पर पड़ी। वो एक बरगद के दरख्त के नीचे पुरसकून बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं जैसे वो कोई अमल कर रहा हो। उसका चेहरा उस 14वीं रात की शब में बेइंतहा चमक रहा था। मैं उसे देखकर हैरान थी, क्योंकि वो आम जिनजादों की तरह खौफनाक नहीं था, बल्कि इंतहाई पुरकशिश और वजीह चेहरे का मालिक था। उसने बड़ी सी काली चादर अपने वजूद पर पहनी हुई थी। शायद वो वहां बैठकर कोई खास अमल कर रहा था। वो इर्द गिर्द से बिल्कुल बेनियाज था। वहां जितने भी जिनजाद मौजूद थे, कोई भी उसे तंग नहीं कर रहे थे, क्योंकि सब अपने हाल में मस्त थे। उसकी खामोशी देखकर ऐसे लग रहा था जैसे वो कोई नेक फितरत का मालिक जिनजाद है। मेरी नजरें उस पर से हटने का नाम नहीं ले रही थी। जाने मैं वहां कितनी देर तक बैठी रही और उस जिनजाद को देखती रही, और वो उस बरगद के पेड़ के पास जाकर गायब हो गया। अब मेरी बाकी जिनजादों से दिलचस्पी खत्म हो गई थी, और अपनी नजरों के सामने से उस जिनजाद को गायब देखकर मैं वहां से उठ गई। घर आकर मेरा अजब हाल हो रहा था। मेरी सोचों पर जैसे उस जिनजाद का कब्जा था, और दिल चाह रहा था कि एक बार तो उसे मुखातिब करती कि कोई खूबसूरत आदमजादी कितने गौर से तुम्हें देख रही थी, लेकिन तुम्हें इस बात की खबर ही नहीं। कहाँ मैं कॉलेज में पढ़ने वाली ज़हीन फतीन लड़की, और अब तो मैं किताबें खोल कर ना देखती थी। मेरी सारी दोस्तें मुझे कहती थीं कि वर्दा, तुम कुछ बदली बदली दिखाई देती हो, क्या वजह है? लेकिन मैं उन्हें अपने दिल की कोई बात ना बता सकती थी, वरना मेरे उस जादुई चश्मे का राज खुल जाना था। फिर दूसरे दिन भी मेरा उस कब्रिस्तान में जाने को दिल मचलने लगा। मैं एक बार फिर से उस जिनजात का दीदार करना चाहती थी। जैसे ही मैंने अपना जादुई चश्मा लगाया, मेरी आंखों ने उस दिन से भी ज्यादा खौफनाक मंजर देखा, क्योंकि मुझे जिनजात के इंतहाई छोटे छोटे बच्चे दरख्तों पर उछलते कूदते साफ दिखाई दे रहे थे, जबकि खौफनाक चेहरों वाली चुड़ैलें दरख्तों पर बैठी जोर जोर से हंस रही थी, जैसे उन्हें किसी को देखकर निहायत लुत्फ आ रहा हो। खौफ से मेरा बुरा हाल था, लेकिन मेरी नजरें सिर्फ उस जिनजात को देखना चाहती थीं। फिर थोड़ी ही देर बाद वो मुझे नजर आया। वो उसी दरख्त के गिर्द चक्कर काट काट कर कोई अमल कर रहा था। शायद अपनी ताकत में इजाफा करना चाहता था, क्योंकि मैंने सुना था कि जिनजाद अक्सर मुख्तलिफ अमल करके अपनी ताकतों में इजाफा करते हैं। मैं सिर्फ ये चाहती थी कि एक बार वो अपनी बंद आंखें खोलकर मुझे गौर से देखे और मुझे देखकर हैरान रह जाए कि कोई इंसानी लड़की उसे देखने की खातिर आधी रात को इस कब्रिस्तान में आती है। काफी देर तक मैं उसे देखती रही, लेकिन मेरी नजरों ने उस पर कोई असर ना किया। यूं मैं मायूसी से उठकर अब घर की तरफ जा रही थी। दूसरे दिन मैंने कॉलेज से छुट्टी की। मेरी तबीयत कुछ अजीब सी हो रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे मैं उस खूबसूरत चेहरे वाले जिनजात को देखकर उसे अपने दिल में बसा बैठी हूँ। मैं अभी सोफे पर लेटी ही थी कि मासी सुगरा वहां सफाई करने के लिए आ पहुंची। फिर मेरे दिल में ना जाने क्या आया। मैं मासी सुगरा को कहने लगी कि मासी, जो पीर तुम्हारी बेटी का इलाज कर रहा है, क्या तुम मुझे उसके पास लेकर जा सकती हो? वो मेरी शक्ल देखकर हैरान थी। फिर कहने लगी, बीबी साहिबा, आप तो चंगी भली हैं, फिर आपको उस पीर के पास जाने की क्या जरूरत पेश आ गई? फिर मैं उससे बहाना बनाने लगी। उससे कहने लगी कि मेरी एक दोस्त है, उसको भी किसी जिनजात का साया हो गया है, उसके घर वाले बड़े परेशान हैं। तुम मुझे उस पीर का पता बताओ ताकि मैं भी अपनी दोस्त को वहां लेकर जाऊं। लेकिन ये बात तुमने किसी को बतानी नहीं है, और मेरे घर में तो हरगिज नहीं। फिर मैंने बहुत से पैसे उसके हाथ पर रखे और उससे कहने लगी
کہ اگر تم میری مدد کرو گی تو بدلے میں تمہیں اور بھی پیسے دوں گی، لیکن تم نے یہ بات کسی کو بتانی نہیں ہے کہ میں اس پیر کے بارے میں تم سے پوچھ رہی تھی۔ ماسی سغرا پیسوں کو دیکھ کر بے حد خوش ہو گئی اور پھر مجھے کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، میں کل شام کو آپ کو اس پیر کے پاس لے چلوں گی۔ پھر دوسرے دن میں ماسی سغرا کا انتظار کرنے لگی کہ کب وہ میرے ساتھ جائے گی۔ جیسے ہی وہ کام سے فارغ ہوئی تو اس نے مجھے چھپکے سے اشارہ کیا اور میں اس کے ساتھ گھر سے نکل پڑی۔ اس پیر کا آستانہ کافی دور تھا۔ پیدل چل کر میں تھک گئی تھی، لیکن کچھ پانے کا جنون میرے سر پر سوار تھا، اسی لیے مجھے اپنی تھکن کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ وہاں پر بڑی عجیب قسم کی عورتیں آئی ہوئی تھیں۔ کسی کی آنکھیں لال تھیں تو کوئی بال کھولے وہاں پر دھمال کر رہی تھی، کوئی ٹکر میری شکل دیکھنے لگی۔ پھر جیسے ہی میری باری آئی تو میں نے ماسی سغرا کو وہیں بیٹھنے کا کہا اور خود اکیلی اندر اس پیر کے پاس آ گئی۔ پیر نے اپنی لال آنکھیں اٹھا کر مجھے دیکھا، مجھ سے کہنے لگا، بتاؤ بی بی، کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ پھر میں نے اس پیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے کہا، میرے ساتھ محبت کا مسئلہ ہے، وہ محبت جو کسی لڑکے کو لڑکی سے ہو جاتی ہے، لیکن میری محبت بہت عجیب ہے جس کا علاج کروانے میں آپ کے پاس آئی ہوں۔ مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے پیر صاحب، بدلے میں آپ مجھ سے جو مانگیں گے میں آپ کو دوں گی۔ وہ پیر مجھے کہنے لگا کہ بتاؤ کون ہے وہ لڑکا، میں اسے تمہارا غلام بنا دوں گا۔ میں پیر کو کہنے لگی کہ پیر صاحب، مجھے کسی لڑکے کی چاہ نہیں ہے بلکہ ایک جن ذات کی چاہ ہے، اسے میں نے ایک قبرستان میں دیکھا تھا۔ عام طور پر جن ذات انسانوں کو نظر نہیں آتے، لیکن میرے پاس ایک ایسی چیز ہے جسے پہن کر میں انسانی آنکھوں سے پوشیدہ جن ذات کو بآسانی دیکھ سکتی ہوں۔ اگر آپ نے میرا یہ کام کر دیا تو میں آپ کو بدلے میں وہ چیز دے سکتی ہوں۔ پیر صاحب آنکھیں پھاڑ کر میری طرف دیکھ رہا تھا، اسے شاید یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری جیسی چھوٹی عمر کی لڑکی اتنی بڑی باتیں بھی کر سکتی ہے۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگا کہ میرے پاس آج تک جتنی بھی لڑکیاں آئی ہیں وہ سب کسی نہ کسی لڑکے کی عاشق ہوتی ہیں، جبکہ میرے پاس تم جیسی واحد لڑکی آئی ہے جو کسی جن ذات کو اپنا عاشق بنانا چاہتی ہے۔ لیکن میں تمہاری یہ خواہش ضرور پوری کروں گا۔ اس کے لیے تمہیں ایک خطرناک چلہ کرنا ہوگا جس کے لیے مجھے چند چیزوں کی ضرورت ہوگی۔ اگر تم وہ چیزیں مجھے لا کر دے سکتی ہو تو میں بھی تمہارا کام کرنے کے لیے راضی ہوں۔ پھر میں اس پیر کو کہنے لگی کہ جب میں آدھی رات کو اکیلی قبرستان میں جا سکتی ہوں تو میں ہر کام کر سکتی ہوں، اس کے لیے آپ بے فکر رہیں اور میرے لیے عمل شروع کر دیں۔ میرے اندر اتنا اعتماد تو تھا کہ میں وہ ہر کام کر سکتی تھی جو اس پیر نے کہنا تھا۔ اس پیر نے جو کہا تھا اسے سن کر تو جیسے میرے ہوش و حواس اڑ گئے تھے، کیونکہ وہ مجھے ایسی چیزیں لانے کا کہہ رہا تھا جو میں کبھی بھی لا کر نہیں دے سکتی تھی، لیکن چونکہ میں اسے زبان دے چکی تھی اسی لیے اب مجھے ہر وہ کام کرنا تھا جس سے مجھے اس جن ذات کو پانے میں آسانی ہو سکتی تھی۔ پیر کے مطابق وہ عمل مجھے خود کرنا تھا، وہ بھی آدھی رات کو اس قبرستان میں جا کر۔ اس عمل کے لیے مجھے چند چیزوں کی ضرورت تھی جو کسی نہ کسی طرح کر کے مجھے اکٹھی کرنی تھی۔ مجھے بس یہ ڈر تھا کہ کہیں مجھے یہ سب کام کرتے ہوئے کوئی دیکھ نہ لے۔ پھر دوسرے دن ہی میں نے اپنے عمل کا آغاز کر دیا۔ اپنے عمل کے لیے مجھے مرغی کا تازہ خون، جانوروں کے سینگ اور انسانی ناخنوں کی ضرورت تھی۔ اس میں حیران تھی کہ ایسا عمل تھا جس میں ان بیکار چیزوں کی ضرورت تھی۔ پھر میں نے ماسی سغرا کے ہاتھ پر اچھی خاصی موٹی رقم رکھی اور اس سے یہ ساری چیزیں منگوا لی۔ میرا کام ہو گیا تھا، لیکن وہ خاص عمل مجھے خود ہی کرنا تھا۔ آج رات کو میں قبرستان جانے والی تھی جہاں پر بیٹھ کر میں نے آگ جلا کر ان ساری چیزوں کو جلانا تھا۔ اب میں نے اپنی بڑی سی کالی چادر لی اور چھپکے سے قبرستان کی طرف جانے لگی۔ آج اندھیری رات تھی، چاند بالکل بھی آسمان پر دکھائی نہ دے رہا تھا۔ شاید اسی وجہ سے درختوں کے سائے بھی اس کالے اندھیرے میں خوفناک لگ رہے تھے۔ اس پیر کے مطابق جب میں وہ عمل کرنا شروع کرتی تو مجھے اپنے کانوں میں بدروحوں کی آوازیں بھی آ سکتی تھیں اور خوفناک چڑیلوں کی بھی، کیونکہ میرا کرنے والا عمل انتہائی خوفناک تھا۔ ہاں، لیکن اس عمل سے کسی کو نقصان نہیں پہنچ سکتا تھا۔ میں ان ساری خوفناک جنزادوں کو وہاں سے بھگانا چاہتی تھی، لیکن اس جنزاد کو نہیں جو مجھے پسند تھا، اور اس عمل کو کر کے میں اسے حاصل کرنا چاہتی تھی۔ پھر جیسے ہی میں نے وہ عمل کرنا شروع کیا اور ان سب چیزوں کو آگ لگائی تو ہر طرف دھواں اور گندی بدبو پھیل گئی۔
कई चुड़ैलों के रोने की आवाज़ें मेरे कानों में आ रही थी। साथ ही साथ जिनजात भी शोर कर रहे थे। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे वो सब मुझे गुस्से से देख रहे हों। मैं खौफजदा थी, लेकिन इतनी भी ना थी कि वो अमल अधूरा छोड़कर मैं वहाँ से भाग जाती। अब अगर मैं वो अपना जादुई चश्मा लगाकर देख लेती तो शायद खौफ से पागल ही हो जाती, क्योंकि उन जिनजादों के भयानक रूप मेरे सामने आ जाने थे। जैसे जैसे धुआं फैलता जा रहा था, उसकी बदबू से वो जिनजाद और भी शोर शराबा करने लगे और चुड़ैलें इतनी खौफनाक आवाज़ें निकाल रही थीं कि मेरे कानों के पर्दे फटने लगे थे। मुझे ये भी डर था कि कहीं इस अमल से वो जिनजाद कहीं चला ना जाए, लेकिन उस पीर ने मुझे बता दिया था कि तुम जो भी अमल करोगी उसका असर उस जिनजाद पर नहीं होगा और ना ही उसे कुछ दिखाई देगा। वो सारे जिनजादे वहाँ से चले जाते तभी तो मैं उस जिनजाद से मुलाकात कर सकती थी। इसीलिए मेरा पहला अमल उन सारे खौफनाक जिनजादों और चुड़ैलों को वहाँ से भगाने के लिए था। फिर थोड़ी देर बाद ही आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ें थमने लगी और हर तरफ खामोशी छा गई। मैं अभी भी ये अमल रोकना नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं वो उन दरख्तों के पीछे ही ना छुपे हुए हों और मुझे यूं अमल रोकता देखकर वो मुझ पर हमला करते। इसीलिए मुसलसल 5 घंटे तक मैं वो अमल करती रही। जैसे ही मैंने वो अमल दोबारा करना शुरू किया, एक बार फिर से जिनजादों की खौफनाक आवाज़ें फिजा में उभर रही थीं। इसका मतलब है कि वो सिर्फ गायब होने का नाटक कर रहे थे और मुझे इस अमल से रोकना चाहते थे। फिर आखिरकार सुबह का उजाला फिजा में उभरने लगा और चारों तरफ खामोशी छा गई। मुझे खुशी थी कि मैंने अपना अमल पूरा कर लिया था। इसका मतलब है कि वो हैबतनाक जिनजाद वहाँ से चले गए थे। फिर मैं धीरे धीरे उठी और छुपके से घर चली गई। मैं कॉलेज भी नहीं जा सकी थी, क्योंकि पूरी रात अमल करने की वजह से मैं रात भर जागती रही थी। फिर दोपहर में अम्मी मुझे देखकर गुस्से से चिल्लाने लगी कि कहाँ गया तुम्हारा डॉक्टर बनने का वो ख्वाब, जिसके लिए तुम दिन रात रोती थी। अब तो लगता है कि इस साल तुम फेल ही हो जाओगी, क्योंकि रोज रोज कॉलेज की छुट्टी करने से तुम्हारी पढ़ाई का हर्ज हो रहा है। मैं चुपचाप अम्मी की बातें सुन रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे मेरा दिमाग बिल्कुल सुन हो चुका है। फिर मैं अम्मी को गुस्से से कहने लगी, मुझे नहीं बनना कोई डॉक्टर वॉक्टर, मैं जैसी भी हूँ बस ठीक हूँ। अम्मी ने मेरी ऐसी हालत पहले कभी नहीं देखी थी, लेकिन आजकल मैं जिन कामों में पड़ी हुई थी उन कामों ने मुझे हाल से बेहाल कर दिया था। अब मैं मासी सुगरा का भी सहारा नहीं लेना चाहती थी और अकेले ही उस पीर के आस्ताने पर पहुंच गई। अब मुझे अपने लिए दूसरा अमल करना था, जिसे करने से मैं उस जिनजात से मुलाकात कर सकती थी। जैसे ही मैं पीर के पास पहुंची तो वो मुझे देखकर कहने लगा, तुमने अपना पहला अमल बिल्कुल ठीक ठाक सरअंजाम दिया है। अब बारी है उस जिनजात से मिलने की, तो उसके लिए पहले तुमने मुझे 2 खूबसूरत कंगन, और वो भी सोने के, ला कर देने हैं। मैं हैरान थी कि पीर साहब पैसे भी मांग सकते थे, लेकिन उन्होंने उन कंगनों का मुतालिबा ही क्यों किया था। लेकिन बहरहाल मैं उस पीर की बात से इनकार नहीं कर सकती थी। मैंने पहले भी उसे अच्छी खासी रकम दी थी और अब वो फिर सोने के जेवरात मांग रहा था। उसकी शर्त थी कि वो कंगन हासिल करने के बाद ही दूसरा अमल बताएगा। सोने के वो कंगन मेरी अम्मी के पास मौजूद थे, जो अब्बू ने उनको दुबई से ला कर दिए थे। अम्मी के कमरे से चोरी करना मेरे लिए आसान ना था, क्योंकि वो अपने कमरे की चाबियों को अपने पास रखती थी, और अगर मैं उनसे वो चाबियां मांगती तो वो मुझसे ज़रूर पूछती कि मैंने उनके लॉकर में से आखिर क्या रखना है। फिर आखिरकार मैंने इस काम के लिए मासी सुगरा का सहारा लिया। वो मेरी बात सुनकर कहने लगी कि बीबी साहिबा, आखिर आप किन चक्करों में पड़ी हुई हैं? पहले भी आपने मेरे सामने उस पीर को अच्छी खासी मोटी रकम दी थी, ऐसा क्या काम करवा रही हैं आप उनसे? फिर मैंने मासी सुगरा को कहा कि आपको सिर्फ पैसों से मतलब होना चाहिए। याद रखना कि अगर तुमने मुझे लॉकर की चाबियां लाकर दे दी तो मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगी कि तुम्हारी बेटी का जहेज आराम से बन जाएगा। फिर मासी सुगरा ने मुझे अम्मी के पर्स में से वो चाबियां चोरी करके मेरे हवाले कर दी। मैंने अम्मी की गैर मौजूदगी में बड़े आराम से लॉकर खोला और उनके लॉकर में रखे हुए सोने के वो कीमती कंगन निकाल लिए। फिर खामोशी से जाकर मैंने वो कंगन पीर के हवाले कर दिए। उन कंगनों को देखकर उसकी आंखें किसी मक्कार शैतान की तरह चमकी थी, जैसे वो बेतहाशा खुश हुआ हो। फिर मुझे कहने लगा, जब तुमने ये दूसरा अमल करना है तो इसके लिए तुमने गुलाबों के हार और चंबेली के गजरे पहनकर उस कब्रिस्तान में जाना है।
ढेर सारे गुलाब के पत्ते लेकर उनमें धुआं करना होगा, क्योंकि जैसे ही वो खुशबू उस जिनजात तक पहुंचेगी तो वो खुद बखुद तुम्हारे सामने आ जाएगा। ये सारी चीज़ें हासिल करना मेरे लिए मुश्किल ना था। मैं खुश थी कि मेरा काम आसानी से हो जाएगा। इस अमल को करने के लिए मैं अपना जादुई चश्मा साथ ले जाना ना भूली थी, क्योंकि आज उस जिनजात को मैं अपनी आंखों से अपने करीब देखना चाहती थी। फिर जैसे ही मैं तैयार होने लगी तो अपने आप को देखकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार मैं अपने आप को ऐसे सजा रही थी। फिर मैंने अपनी वही बड़ी सी काली चादर ली और आधी रात को उस कब्रिस्तान में पहुंच गई। आज आम दिनों के मुकाबले में किसी कदर सन्नाटा था। फिर मैंने ढेर सारे गुलाब के पत्ते थैली में से निकाले और उनमें खुशबू लगाकर धुआं कर दिया। धीरे धीरे उन सारे गुलाबों की खुशबू पूरे कब्रिस्तान में फैल रही थी। अजीब सा माहौल कब्रिस्तान में बना हुआ था। कहीं से उल्लू के बोलने की आवाज़ें आ रही थीं तो कहीं से कुत्तों के भौंकने की। ऐसा लगता था कि अचानक ही वो सारे जिनजाद जिन्हें मैंने अपने अमल से यहाँ से भगाया था वो मुझ पर हावी हो जाएंगे, लेकिन ये मेरा सिर्फ वहम था। फिर मैंने अपना अमल करना शुरू किया और अपनी आंखें बंद कर ली। अभी अमल करते करते चंद मिनट ही हुए थे कि अचानक मुझे अपने कानों में आवाज़ें सुनाई देने लगी। कोई धीरे धीरे मेरे कान के पास सरगोशी कर रहा था। बोलने वाले का लहजा इंतहाई धीमा था। फिर मैंने अपनी आंखें खोल ली और चारों तरफ देखने लगी। मुझे कोई भी नजर ना आया, सिवाय खौफनाक सन्नाटे के कुछ भी ना था। फिर आंखें बंद करके मैंने अमल करना शुरू कर दिया। फिर अमल करते थोड़ी ही देर हुई थी कि फिर से वही आवाज़ें मेरे कानों में गूंजने लगी। मैं समझ गई कि उस जिनजात तक मेरे अमल का असर पहुंच चुका है। फिर मैंने धड़कते दिल के साथ अपनी आंखें खोली और अपना जादुई चश्मा उठाकर आंखों पर लगा लिया। वही जिनजात मेरे सामने खड़ा था जो मुझे तेज नजरों से घूर रहा था। उसकी आंखों में मेरे लिए शदीद गुस्सा दिखाई देता था। फिर वो मुझे कहने लगा, लड़की, मुझे तुम क्यों सता रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं खुद इस कब्रिस्तान में अपना अमल करने आया था, लेकिन तुमने ये सब करके मेरा अमल खराब कर दिया है। तुम ऐसा क्यों कर रही हो और किसके कहने पर? जिनजात की आवाज़ मेरे कानों में रस घोल रही थी। फिर मैं हिम्मत करके उसे कहने लगी कि मैं सिर्फ अपने दिल के कहने पर यह अमल कर रही हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बात करना चाहती थी। तुम्हें ये एहसास दिलाना चाहती थी कि मैं इस खौफनाक कब्रिस्तान में आधी रात को सिर्फ तुम्हारी खातिर यहाँ आती हूँ। मेरी बात सुनकर वो हैरान था। फिर अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोलकर मुझे देखने लगा और बोला, ये सुना था कि जिनजात किसी इंसानी लड़की के आशिक हो जाते हैं, लेकिन पहली बार मैं किसी ऐसी लड़की को देख रहा हूँ जो जिनजात को अपने सामने हाजिर करना चाहती है। मैं ये देखकर हैरान हूँ कि तुम्हारी आंखों में मेरे लिए कोई खौफ और डर मौजूद नहीं है। क्या तुम्हें पता नहीं है कि जिनजात किस कदर हैबतनाक होते हैं? वो तुम्हें किसी किस्म का नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। फिर मैं दिल मजबूत करके उस जिनजात से कहने लगी कि जो जिनजात मुझे नुकसान पहुंचा सकते थे उन्हें मैंने यहाँ से अमल करके भगा दिया है, लेकिन मैं तुम्हें अपने सामने देखना चाहती थी, इसीलिए मैंने आज ये अमल किया है, वो भी सिर्फ तुम्हारी खातिर। फिर वो जिनजात गुस्से से मुझे कहने लगा, देखो लड़की, अगर जिंदगी में तुम्हें कोई ना सता रहा हो तो भी तुम्हें कोई हक नहीं कि उसे तंग करो। इसीलिए मैं तुम्हें आज समझा रहा हूँ कि दोबारा यहाँ आने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। मुझे उस जिनजात की बात सुनकर गुस्सा आ गया। इतनी हसीन लड़की उसके सामने बैठी थी, लेकिन फिर भी वो मुझे देखकर अपनी नफरत का इजहार कर रहा था। फिर मुझे गुस्से से देखता हुआ वो वहां से गायब हो गया। अब मैं बेबस बैठी थी। मैंने अपने बालों में लगे चंबेली के गजरे गुस्से से वहीं उतार कर फेंक दिए। अब मैं बिखरे बालों के साथ घर जा रही थी। शायद मुझ पर कोई जुनून सवार हो गया था, क्योंकि आज तक जिंदगी में मैंने जिस चीज को हासिल करना चाहा था उसे हासिल करके ही रही थी। फिर दूसरे दिन मैं गुस्से में भरी उस पीर के आस्ताने पर पहुंच गई और उससे कहने लगी, तुम्हारा बताया हुआ अमल बिल्कुल बेकार गया है, क्योंकि वो जिनजात किसी तरह भी मेरा असीर ना हो सका। तुमने मुझसे लाखों के कंगन लेकर भी मेरा काम ना किया। अब आखिरी दफा मैं तुमसे कह रही हूँ, अगर मेरा काम ना हुआ तो मैं पुलिस में तुम्हारी कंप्लेन लिखवा दूंगी कि तुम इलाज करने के बहाने औरतों की इज्जत लूटते हो।
मैं उस पीर को धमकियां दे रही थी और वो आंखें फाड़ फाड़ कर मेरी तरफ देख रहा था। शायद मेरे जैसी दिलेर लड़की का सामना उसे आज तक ना हुआ था। फिर वो मुझे समझाने लगा कि देखो, मेरा अमल सिर्फ उन शैतानी और खौफनाक जिन्जात पर असर होता है जो इंसानों के लिए मुश्किलात पैदा करते हैं, लेकिन तुम जिस जिन्जात को अपना असीर करना चाहती हो वो एक नेक जिन्जात है और किसी बहुत बड़े आमिल का मुवक्किल है। वो सिर्फ उन कामों को अंजाम देता है जिन्हें करने का वो आमिल उसको हुक्म देता है। वो उस कब्रिस्तान में एक काले जादू का अमल कर रहा है जो किसी शख्स पर करवाया गया है, और ये अमल वो उसी आमिल के कहने पर कर रहा है। अब अगर तुम जाकर अपने लिए वो अमल वहाँ करोगी तो ज़रूर उसका वो अमल रुक जाएगा जिसका हुक्म उस आमिल ने उसे दिया है। अब तुम ही बताओ कि तुम अपना अमल पूरा करना चाहती हो या उस जिन जात का अमल पूरा होने दोगी। मैं खुद गर्जी से उस पीर को कहने लगी कि मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, मैं सिर्फ अपना अमल करना चाहती हूँ और इसी के लिए मैं अपना पैसा बर्बाद कर रही हूँ। उस जिन जात की आंखों में मैं अपने लिए मोहब्बत देखना चाहती हूँ जिसका इकरार वो खुद मेरे सामने करे। अब वो पीर मेरे सामने बेबस नजर आ रहा था। फिर उसने मुझे जिन चीज़ों पर अमल करने के लिए कहा वो इंतहाई खौफनाक चीज़ें थी, जिसमें मुर्दा उल्लू और इंसानी खोपड़ी शामिल थी। इंसानी खोपड़ी मुझे अपनी साइंस की लाइब्रेरी से बआसानी मिल सकती थी, जहाँ पर डॉक्टर बनने वाली लड़कियों को तजर्बे कर करके सिखाया जाता था। अब मैंने अपना दिमाग चलाकर वो दोनों चीज़ें हासिल कर ली थी। अब फिर रात को मुझे उसी कब्रिस्तान में जाना था और अपना अमल करना था। इधर मैं अपने लिए अमल कर रही थी और उधर वो जिन्जात उस काले इल्म का तोड़ करने के लिए अमल कर रहा था। यूं दोनों ही अमल अंजाम को ना पहुंच सके और वहां पर वो सारे खौफनाक जिन्जात हाजिर हो गए जिन्हें मैंने अमल करके भगाया था। अब वो सारे मेरे गिर्द घेरा डालकर खड़े थे और किसी भी तरह से मुझे उस अमल से रोक कर मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते थे। उनकी खौफनाक आवाज़ें मेरे कानों को सुन कर रही थी। शायद आज मैं उनके हाथों मरने वाली थी, क्योंकि उनके इरादे बहुत खतरनाक थे। वो चुड़ैलें इतने भयानक अंदाज में हंस रही थीं और बहुत बड़े बड़े दांत निकालकर मुझे देख रही थीं। आज बगैर जादुई चश्मे के भी मुझे सब कुछ नजर आ रहा था, क्योंकि मैंने वो अमल करके उन सबको वहाँ हाजिर कर दिया था। फिर जैसे ही मैं वहाँ से उठकर भागने लगी तो अचानक वो सारे खौफनाक जिन्जात मेरे सामने आ गए। लंबे लंबे नाखूनों वाली चुड़ैलों ने अपने दोनों हाथ मेरी तरफ बढ़ाए थे। इससे पहले कि वो मुझे कुछ नुकसान पहुंचाती, अचानक मेरे आगे वो लंबा चौड़ा नेक जिन्जात आ गया। अब उसने सिर्फ हाथ का इशारा किया और उन सबको वहीं रोक दिया। मेरी जान में जान आई। मैंने खौफजदा नजरें उठाकर उन्हें देखा। वो अजीब तरीके से सर हिला हिलाकर उन जिन्जादों को वहां से हटने का कह रहे थे, लेकिन जिन्जाद उन्हें कहने लगे कि ये आदमजादी बहुत छोटी और नादान है। इसे ये नहीं पता कि हम इंसानी मखलूक नहीं जिन्हें ये ज़ेर कर लेगी, बल्कि हम खलाई मखलूक हैं। तुम लोगों के जहाँ ठिकाने हैं तुम वहाँ रह सकते हो। इस लड़की ने ये गलत किया है, तुमने इसे कोई नुकसान नहीं पहुँचाया, फिर भी ये तुम्हारी दुश्मन हो गई। लेकिन मुझे यकीन है कि आज जो तुमने इसके साथ किया है उसके बाद ये यहाँ का रुख नहीं करेगी। फिर वो जिन्जात एक एक करके वहाँ से हटने लगे। वो नेक जिन्जात मेरी तरफ मुड़ा, मुझसे कहने लगा, तुमने देख लिया तुम्हारे इन अमाल का क्या नतीजा निकला है। इसीलिए कभी भी उन चीज़ों को नहीं छेड़ना चाहिए जो नज़रों से पोशीदा हों, क्योंकि इसी में भेद छुपे होते हैं। अगर आज मैं तुम्हें ना बचाता तो पता नहीं ये शैतानी जिन्जात तुम्हारा क्या हशर करते। इसीलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि हमारी दुनिया में दखल अंदाजी करने के बजाय अपनी दुनिया की ज़िंदगी को संवारो, और जब तक तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचाए तुम बिला वजह किसी के पीछे ना पड़ो। मैं सिर्फ चंद दिन के लिए यहाँ आया था, क्योंकि मेरे सर पर एक नेक आमिल का हाथ है जो कि एक इंसान है, लेकिन उसने मुझे अपना मुवक्किल बनाया है और मैं खुशी से उसका काम कर रहा हूँ, क्योंकि वो मेरा इस्तेमाल सिर्फ नेक कामों के लिए करता है। जो भी इंसान तकलीफ में होता है तो उस इंसान की तकलीफ दूर करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है। इसीलिए तुम भी कोशिश करो कि अपनी ज़ात से किसी को अजियत ना दो, और जिन चीज़ों पर पर्दा है उस पर पर्दा ही रहने दो। तुम्हारी झुकी हुई नज़र इस बात की निशानदेही कर रही है कि तुम मेरी बात अच्छी तरह समझ गई हो। इसीलिए अब चुपचाप घर जाओ और दोबारा कभी यहाँ का रुख ना करना। अब वो नेक जिन्जात मेरी नज़रों से गायब हो गया। फिर मैं खामोशी से घर की तरफ जाने लगी, लेकिन फिर मैं धक से रह गई।
मैं अपना जादुई चश्मा वहीं कब्रिस्तान में छोड़कर आ गई थी। मैं एक बार फिर पलटी और उस चश्मे को लेने के लिए भागी, लेकिन मेरे कदम बीच में ही रुक गए। मुझे उस जिनजात की बात याद आ गई जो वो मुझसे कह रहा था कि जिन चीज़ों पर पर्दा है उन पर पर्दा ही रहने दो। नहीं, मैं अब उन चीज़ों को खोजने की कोशिश नहीं करूँगी जो खुद खुदा ने पोशीदा रखी हैं। भला मैं तो एक अदना सी इंसान हूँ, ना मैं वो चश्मा बनाती और ना ही मुझे आज ये सब कुछ झेलना पड़ता। जिनजात की मोहब्बत दिल के किसी कोने में छुपी हुई थी, लेकिन अब मुझे अपने दिल पर भी पर्दा डालना था। मैं खामोशी से घर पहुंच गई और पूरी रात सो ना सकी। काफ़ी दिन तक कॉलेज से छुट्टियां करती रही, फिर आखिरकार कॉलेज जाना शुरू कर दिया। इस साल मैंने पेपर्स दिए तो मैं बुरी तरह से फेल हो गई। मेरे जैसी टॉप करने वाली लड़की किसी के सामने नज़रें उठाने के काबिल ना रही, क्योंकि मैं जो अपनी जहानत पर इतना गरूर करती थी आज शायद मुंह के बल गिरी थी। अम्मी अब्बू के सामने मेरा रिजल्ट था जो मुझे गुस्से से देख रहे थे। फिर अब्बू अम्मी से कहने लगे कि कोई ज़रूरत नहीं है इस पर पैसा बर्बाद करने की, क्योंकि तुमने देखा नहीं कि पूरे साल इसने कॉलेज से किस कदर छुट्टियां की हैं। अब इसका रिश्ता ढूंढो और इसकी शादी करने की तैयारी करो। मैं अम्मी अब्बू के सामने रोने लगी। उनसे कहने लगी कि मुझे सिर्फ आखिरी मौका दे दें, मैं अब आपको मायूस नहीं करूँगी। फिर मेरे यूं रोने बिलखने पर बिल आखिर अम्मी अब्बू ने मुझे इजाज़त दे दी कि मैं दोबारा कॉलेज जाना शुरू कर दूं। मेरी सारी क्लास फेलोज़ अगली क्लास में जा चुकी थी, जबकि मैं दोबारा से उसी क्लास में पढ़ रही थी। मैं ये सोचकर भी परेशान थी कि अगर कल को अम्मी को ये पता चल गया कि उनके सोने के कीमती कंगन घर से गायब हैं, तो कहीं वो किसी मुलाजिम पर इल्ज़ाम ना लगा दें कि उनका हाथ है। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे हैरान कर दिया। मैं सोकर उठी तो मेरे सरहाने वो खूबसूरत कीमती कंगन रखे थे। मैं हैरान थी कि ये खूबसूरत कीमती कंगन किसने यहाँ रखे। फिर मेरे करीब से अचानक हवा का झोंका गुजरा, जिससे मुझे इंतहाई दिलफरेब खुशबू महसूस होने लगी। मैं समझ गई कि ये उसी नेक जिनजात के काम थे जिसे मैंने अपने अमल के ज़रिए तकलीफ़ पहुंचाई थी। अब मैंने अपने दिल में मजबूत इरादा कर लिया कि मैं कभी भी किसी को भी अजियत ना दूंगी और ज़िंदगी में ऐसे काम ना करूंगी जो काम करना इंसानों के बस में ना हो। जो जिस तरह जीना चाहता है उन्हें अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा पूरा हक है। हम अपनी ज़िंदगी में ऐसे काम कर गुजरते हैं जो ना सिर्फ बाद में हमें तकलीफ़ पहुंचाते हैं, बल्कि हमारे साथ रहने वालों को भी उनकी वजह से तकलीफ़ पहुंचती है। नाज़रीन, अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको ऐसी दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो ऐसी एक कहानी रोज़ाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।